How are you friends? Welcome to our YouTube channel English Learning with Rohit. Friends, today we will discuss a very important and very tricky topic called active voice and passive voice. You must have seen, you must have heard that many times when this topic is given in any exam, we start thinking again and again that what should be the correct answer. So friends, today we will discuss what is called active voice and what is called passive voice. What are the rules of active passive voice? Let's start. I will be using bilingual method as I always say that English can be learned in any language. It is not mandatory that English can be taught by the help of English only. So I will be using bilingual method. Let's start. Friends, see, active voice passive voice. See, I'll start this topic with an example. See what happens. If I write something like this, I give fee. Second is I am given fee. See, there are two sentences, friends. I give fee and I am given fee. You can see in English we have a formula to construct a sentence, that is subject, verb and object. It means सबसे पहले क्या आता है इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग में, जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर. क्या होता है सब्जेक्ट? डूअर, जो कि एक्शन कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में सेंटेंस में क्या होती है, उसमें होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. मैं खाना खाता हूं. सी, I'm using this Hindi sentence just to make you understand more confidently and just to take the easiest matter so that everybody could understand what is being taught. See, I is a subject, food is an object and it is a verb. हिंदी में तो बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, अगर आप उसे इंग्लिश बनाएंगे I food it will be a wrong sentence. Because you have to follow this formula, because we are making English. See, I, object, some verb will come first, food, eat, and then comes food. So ये एक फॉर्मूला हम इंग्लिश में यूज करते हैं. Which one? Subject, verb and object. So we will discuss further. See. So as I told you, I give fee, I am given fee. Is there any difference? Yes. I give fee. मैं फीस देता हूँ. I am using हिंदी, मदर टंग. Why? कि आपको डिफरेंस तो पता लगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या लिखा जा रहा है. I fee, I give fee. मैं फीस देता हूं. I am given fees. Now friends, focus here. Verb is give. एक्शन क्या हुआ? देने का. किसने दिया? I ने. I ने एक्शन किया और क्या एक्शन किया? उसने फीस दी. ऑब्जेक्ट इज फी. Now see, I am given. मुझे फीस दी जाती. Now see friends, I is here and I is here, or in both sentences I is subject, isn't it? But see, what I want to make you understand that in active form our subject is doer. Our subject is doer. But in passive form, subject is not a doer. Subject is not a doer. Subject is an undergoer.
इट मीन्स यहां पर सब्जेक्ट तो है पहले, लेकिन सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, सब्जेक्ट डूअर नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा सब्जेक्ट। और एक मैं आपको एग्जांपल दूं, सी देखिए, सी इन इंडिया गर्ल्स आर, isn't it a bitter truth of Indian society? सब सेम, सब्जेक्ट इज गर्ल्स, लेकिन आप देखेंगे किलिंग कौन कर रहा है? गर्ल कर रही है कि किलिंग? किलिंग कौन कर रहा है? हु इज किलिंग? गर्ल्स नहीं। गर्ल्स ऑल्दो द सब्जेक्ट इज देयर, बट सब्जेक्ट इज नॉट अ डूअर, ही इज नॉट डूइंग एक्शन, he is undergo. It means there is someone who does killing. सब्जेक्ट गर्ल्स है, लेकिन गर्ल्स डूअर फॉर्म नहीं, डूअर नहीं है गर्ल्स, बिकॉज अब क्या हो जाएगा? बाय अस, by the people of India, by the Indian society. So what I want to say, in active form, in active voice, so what I want to say that subject is doer in active voice. Subject is not a doer, instead object is doer. देखिए बड़ा ट्रिकी है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, सी देखिए, इंग्लिश इज taught by Rohit. Now subject is, as I told you earlier, we follow this formula: subject, verb and object. Subject is here, but if I ask you to make the translation of this sentence, what will be the Hindi translation? कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं, सब्जेक्ट इज इंग्लिश बट इट्स नॉट डूअर, एक्शन इज what is the verb? टीच, एंड टीच का काम इंग्लिश कर रही है या रोहित कर रहा है? हु इज टीचिंग, इंग्लिश और रोहित? यू विल से रोहित इज टीचिंग। तो जब रोहित सब्जेक्ट है तो वो यहां पे क्यों है, वो यहां क्यों नहीं है? बिकॉज दिस सेंटेंस इज ऑफ passive voice, where our subject is not a doer, our object is doer. Both types of sentences make same sense, but rules are different. There are certain sentences which can only be made by the help of passive voice. ठीक है, आपको समझ में आया? I hope you must have understood. If you have any problem, any doubt, you can comment me and I will try to make you understand once again. ना देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव के अंदर हमारा सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट डूअर होता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं, देखिएगा। राधा cooks the food. Radha cooks the food. Now Radha is subject. This is verb and this is object. Now focus here. If you are able to find out, understand the logic of subject in active and passive, this question will be very very easy for you, because यही आपको एक ट्रिक पकड़नी होती है, यही एक जो है इसकी ट्रिक होती है। राधा कुक्स द फूड। नाउ राधा इज अ सब्जेक्ट, बट कुकिंग का काम राधा कर रही है या फूड कर रहा है? यू विल से राधा इज कुकिंग। इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो हमारा डूअर है, हमारा एक्टिव है, और हमारी वर्ब भी एक्टिव फॉर्म में है, और ये जो है हमारा ये पैसिव बन गया। Now I change the sentence. See, the food is cooked by Radha.
both sentences are making same sense, whether you speak like this, whether you speak like this, both sentences are grammatically correct, but this sentence is in active form and this sentence is in passive form. And these types of examples are asked in exams, in competitive exams, especially for 10th board students and 9th 8th students and anyone who is doing something for his career. आपको क्या करेंगे, you will be given a sentence and you will be given 4 options and you have to pick the most correct, the most appropriate answer you have to pick. उसमें आपको बताना है कि इसकी एक्चुअल पैसिव फॉर्म क्या है, ऐसे आपसे वो क्वेश्चन पूछता है. और जो हम स्कूल्स के बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे 10th 12th के, उनको एडिटिंग, ओमिशन, इनके अंदर भी पूछ लेते हैं. दे जस्ट ट्राई टू चेक द नॉलेज वेदर यू आर कैपेबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश और नॉट. तो इस तरह से सेंटेंस हम पूछते हैं. आया समझ में? एनी डाउट? गुड. नाउ सी फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस. सी, there are certain rules, there are some common rules which are applied in passive voice. जैसे जो सब में होता है, rules of passive voice. Rule number first, subject is changed with ऑब्जेक्ट. क्या करेंगे हम सब्जेक्ट जो है एक्टिव के अंदर उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट जो उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं. ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड विद सब्जेक्ट. ओके, एंड नेवर फॉरगेट फ्रेंड्स, in passive form we always use third form of verb. ध्यान रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ verb is used. And there is another rule, rule number 4, by is used before object. बाय का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट से पहले. एक्टिव में जो सब्जेक्ट हो हम पैसिव में क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय लगा देते हैं. बट तभी है इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन तब आप उसके आगे बाय लगाते हैं. तो दीज आर द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस. आपको जब एक्टिव से आप उसको पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो आपको इन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दीज थिंग्स आर आस्क्ड, दीज थिंग्स आर चेक्ड. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे. नाउ second question, as we know we have 3 tenses: present tense, past tense, future tense, and each tense has 4 parts. तो in total we have 12 tenses. अब 12 tenses के अंदर सिर्फ फ्रेंड्स 8 tense ऐसे होते हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. अब 12 में से 8 बनते तो पूरे 4 कौन से हैं जिसके नहीं बनते हैं, और वो 4 tenses हैं जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. दोबारा बता देता हूं आपको. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ये 4 टेंसेज दे कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. तो हमारे पास कितने टेंस हैं? हमारे पास टोटल हमारे पास टेंस हुए 8 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. और वो 8 टेंसेस के एज आपको पता ही है कि आपको टेंसेस आने चाहिए. टेंसेस के जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं एक्टिव के, और पैसिव के रूल्स आर टोटली चेंज. मैं आपको बताता हूँ पैसिव के रूल्स क्या होते हैं. सी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, देन सिंपल पास्ट. अब देखिएगा आप, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहां से स्किप कर दिया. क्यों? क्योंकि बनती नहीं है. सिंपल पास्ट, देन कम्स पास्ट
continuous, then comes past perfect, then comes simple future. इनको हम फ्यूचर इंडेफिनेट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, ऐसे भी बोला जाता है. आप ध्यान रखिएगा, सिंपल फ्यूचर, देन लास्ट फ्यूचर परफेक्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हाउ मेनी टेंसेज वी हैव? 8 टेंसेज विच कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस ओनली. अब देखिएगा पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं, इनके रूल्स क्या है. रूल्स पे फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स. इट इज सेड इफ यू वांट टू चेक समवन्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यू जस्ट गिव देम सम सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस. वो आपको बता देगा तो उसको अच्छी नॉलेज है. अगर अटक गया, इफ ही फील्स लिटिल कंफ्यूज्ड, तो अभी प्रॉब्लम है. देखिए सिंपल प्रेजेंट के रूल्स क्या होते हैं. एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज am, are, then as I told you, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, और मैंने आपको कहा था बाय यूज होगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट. ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. रोहित इज taught by his teacher. See friends, Rohit, subject, the tense is simple present. The rules of simple present is we use is, am, are. is लगाया मैंने, सिंगुलर फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है. थर्ड फॉर्म ऑफ V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट. ये रूल्स आपने सभी पैसिव में इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं आप लोगों को. बस आपने क्या ध्यान देना है, देखिए ये तो बहुत सब में नॉर्मल है ना भाई. V3 आप सब में लगाएंगे, V3 बाय ऑब्जेक्ट, तो यू नीड नॉट टू अंडरस्टैंड. आपको पता है V3 बाय और ऑब्जेक्ट मुझे लगाने हैं. नाउ यू हैव टू फोकस हियर ओनली. हेल्पिंग वर्ब पे आपने फोकस करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाई जा रही है और उसका क्या सेंस बनता है, ये ध्यान रखिएगा. V3 is used in all the passive sentences. By is used and object. Subject का object, object का subject, ये मैंने आपको बताया. देखिएगा. Next. Now comes present continuous. Subject plus is, am, are plus V3 plus by plus object. Now see friends. सब्जेक्ट इज एम आर V3 बाय ऑब्जेक्ट. कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट इज एम आर V3 बाय ऑब्जेक्ट. ना आप में से कुछ लोग सोच रहे हो गलत बता रहा हूं. देखिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, नोइंगली आई हैव रिटन. सी सब्जेक्ट इज एम आर V3 बाय ऑब्जेक्ट. अब दोनों ही सेंटेंस हम आपने ध्यान देना कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना, वी पुट बीइंग. बाकी रूल सेम है. देखिए बस इंडेफिनेट टेंस में और कॉन्टिन्यूअस टेंस में देयर इज ओनली वन डिफरेंस, वी पुट बीइंग. अब ये ओमिशन बच्चों से बहुत पूछते हैं, 10th के स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बहुत पूछा जाता है. ओमिशन, यू विल राइट आई वॉज गिवन होमवर्क while my brother was playing. There will be a sentence like this. आपसे पूछेंगे इसमें बताइए omission मतलब क्या? A word, a particular word has been deleted, has been skipped. उसको अलग कर दिया गया. तो आप बोलेंगे जिनको ग्रामर के रूल्स पता है वो कहेंगे गलत है, ऐसे लग जाएगा. अब ये एडिटिंग में पूछ लेते हैं कई बार. एडिटिंग में क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, आप कैसे चेक करेंगे? आई वॉज और यहां लगा देंगे बीन. आई वॉज बीन गिवन होमवर्क. तो दोज हु आर अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, दे विल इजीली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड will get their answer that bean is wrong.
बिकॉज बीन इज यूज इन परफेक्ट टेंस। तो इस तरह के रूल्स वो हमसे पूछते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाउ डू दे आस्क, हाउ डू द एग्जामिनर्स आस्क, वो आपको क्या करेंगे, यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस। देयर विल बी ए सेंटेंस विच विल बी इन एक्टिव फॉर्म, आपको पूछा जाएगा पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको रूल्स देखते हैं। देन कम प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, which helping verb is used, has and have. Then been, as I told you, in perfect tense we use been, in continuous tense we use being, in simple present tense we do not use anything. Subject has have been plus V3 plus by and plus object. देखिए सेम, आपने याद क्या करना है, आपने बस यहां ध्यान देना है। See here, what are the changes? Then comes, sir, friends, simple past. Simple past, subject, simple present में is हमारा था, इसमें was आ जाएगा because our tense is in past form. past tense में हमारा tense subject plus was were plus V3 plus by and plus object, isn't it? Subject was were V3 by object. Now comes past continuous. Being will be there, this will remain same, is MR will be changed with was were. बहुत सिंपल सा है, एक बार आपको आ जाता है ना तो बहुत आसान होता है। was were being plus V3 plus by and plus object, isn't it? देख रहे हैं आप? What is the difference between the passive voice of present continuous and past continuous? Subject is MR, being V3 by object is there. Subject being is also there, V3 is again, but the helping verb has been changed. Is MR, this helping verb has been changed with this helping verb, was verb. Comes past perfect, subject plus had. In present perfect we have has have, in past perfect we have had. As I told you, perfect tense में कौन सी क्या लगा देंगे हम, been लगा देंगे। और then comes V3, then by and then object, isn't it? Understood? Then comes simple future. Simple future, subject plus will, shall. These are the helping verbs which are used in simple future tense. Then comes will, shall is immediately followed by be. ये ध्यान रखिएगा, be आएगा उसमें, will, shall के बीच हम be लगाएंगे। Then comes V3, then by and then object, isn't it? Understood? Subject, will, shall, be, V3 by object. Last but not the least, friends, those who are preparing for competitive exam, this is the most favorable, this tense is mostly given by our examiners, क्योंकि बहुत कम लोग इसके रूल्स को याद रख पाते हैं। देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस will have, shall have plus been. Don't forget, whether we are making passive voice of present perfect, past perfect or future perfect, we have to use been. We have to use been. It is mandatory, important. Then comes V3, then by and then object. See. So these are the rules of passive voice. And now you can see in continuous tense, whether we are talking about present continuous tense, whether we are talking about past continuous tense, and whether we are future continuous is cannot be changed in passive voice, हम उसमें क्या लगा देते हैं फ्रेंड्स, being लगा देते हैं. In perfect tenses we use been, and in simple present, simple past, simple future हम ना तो being लगाते हैं ना
हम बीन लगाते हैं, बट सिंपल फ्यूचर में हम बी लगा देते हैं. बाकी के रूल्स विल एज इट इज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई विल नॉट से यू शुड मग अप, बट आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं. अदरवाइज यू विल ऑलवेज कीप थिंकिंग हाउ टू गिव आंसर्स. वेरी सिंपल टू आंसर, बट अगर आपको लॉजिक पता है उसके पीछे का तो आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस. सी, आई विल गिव हियर वन सेंटेंस. आप बताइएगा उसकी पैसिव कैसे बनेगी. माई वाइफ teaches English. Think, my wife teaches English. Now, as I told you, there are some common rules for passive. Subject becomes object, object becomes subject, by is used, verb की third form is used, और ये सब चीजें हैं. अब देखिए क्या होगा. ये subject है ना, ये verb और ये object, isn't it, friends, students? Subject, वर्ब, ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट आई विल डू, ये मैं आगे ले आऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं बना दूंगा सब्जेक्ट. इंग्लिश. ना इंग्लिश हैज बीन आवर सब्जेक्ट, हियर इट वाज आवर ऑब्जेक्ट इंग्लिश. बट देखिए कि यहाँ पर वाइफ जो थी वो डूअर थी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट तो है लेकिन ये एक्शन नहीं कर रहा. इट्स स्टिल रिसीविंग. एक्शन को रिसीव कर रहा है, कर नहीं रहा. इंग्लिश. नाउ दिस टेंस इज simple present. How do we know this is simple present? Yes. It is used in simple present tense. Now simple present tense के पैसिव के रूल्स आपको लगाने हैं. सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव उसने आपको ये ध्यान रखना है रूल्स. यू हैव टू कीप दीज रूल्स इन योर माइंड ऑलवेज. इंग्लिश. नाउ इंग्लिश इज अ सिंगुलर नंबर. इज यूज्ड, वी ऑल नो. इंग्लिश इज. नाउ टीच का आप थर्ड फॉर्म कर देंगे. इंग्लिश इज taught. English is taught. Subject is V3, then object, और object से पहले क्या लगा देंगे हम, by. अब ये जो है my wife था, ये बन जाएगा हमारा object. by my wife. Isn't it? कुछ है समझ में फ्रेंड्स? This is very simple to understand. But if you know the rules को ध्यान में रखिए, किसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे रूल्स को चेंज करना है, सब्जेक्ट कहाँ है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको आपका आंसर सामने दिखेगा. एंड बाय डूइंग अ लिटिल, थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी. देखिए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, यही देता हूँ. आई एम नॉट क्लीनिंग ऑल दिस. आई एम नॉट क्लीनिंग ऑल दिस, ताकि आप पढ़ते रहें. देखिए अगला एक देखिएगा. दे विल not invite me. They will not invite me. Friends, see, if I ask you, this sentence is in active form or in passive form? बताएंगे आप active form है passive form है? They will not invite me. See, how you can see? Focus here. Subject is they and action is, verb is invite. They will not invite me. Invite. Me invite नहीं करेगा या they invite नहीं करेगा? See, you will say they. It means they हमारा doer फॉर्म में है और हमारा सब्जेक्ट भी है, तो हमारे सेंटेंस कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म. ठीक, क्यों? They is there, subject is there and subject is doing something. Object is receiving something. अब इसको मैं चेंज करता हूँ पैसिव में. Now you see this, from by the help of helping verb you can easily understand, easily know that this sentence is of which tense. You will say this tense is an example of simple future tense. अब simple future tense के रूल्स देखिए, ये लिखे हुए. सब्जेक्ट will shall be V3 by object. और कॉमन रूल जो मैंने आपको बताए थे, मी को हम ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना. हाँ, आई. अब आई के साथ शैल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं. आई शैल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस था, बी.
I shall not be invited. See friends, invited is changed with invited. Why? Because this is mandatory. It is a universal truth that in passive form we use third form of verb. I shall not be invited. Now object is they will become them. ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगा देंगे हम? अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब हम बात करेंगे कि हम मॉडल्स की ऑक्सिलरी वर्ब्स की पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं. एज वी ऑल नो दैट कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, must, these are called auxiliary verbs. Used to, ये बहुत सारी auxiliary verbs होती हैं. अब auxiliary verbs के लिए how do we make passive form of any sentence which has any auxiliary verb? See, जैसे मैंने आपको बताया था, subject becomes object, object becomes subject, V3 is used and by is used before object. These are the common rules of making passive voice. अब आपने क्या करना है, सपोज कीजिए कि इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, यू नो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब. अगर मैं देता हूं आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म. फोकस हियर. Why I am telling you always again and again to focus on subject, because by the help of subject you can easily get your answer whether the sentence is in active form or passive form. I is in doer form. I is a doer. क्यों? वो सॉल्व करने का हम खुद कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा. क्वेश्चन is an object. Our subject is I. So this is an active form. अब इसको पैसिव फॉर्म बनाऊंगा. पैसिव फॉर्म कहेंगे सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ये है हमारा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट. अब मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये इधर ले आऊंगा. दिस क्वेश्चन. अब ये क्या बन गया सर फ्रेंड्स? सब्जेक्ट. नाउ द ऑब्जेक्ट हैज बिकम द सब्जेक्ट, द क्वेश्चन. नाउ देखिए, पहले जब मैं आपको टेंस में बता रहा था कि इज एम आ आएगा, बीइंग आएगा, बीन आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स में ऐसा कुछ नहीं होता. देयर इज नो बीइंग, देयर इज नो बीन, देयर विल बी बी ओनली. आप क्या करेंगे, एज इट इज उसी ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे जिस टेंस में वो है, उसको द ऑक्सिलरी वर्ब विल इमीडिएटली बी फॉलोड बाय बी. सब्जेक्ट द क्वेश्चन कैन. कैन को मैंने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज. अब इसको मैं कर दूंगा बी लगा देता हूँ. The question can be, and as I told you, third form of verb solved by, and I का क्या हो जाएगा? Me. See, I can solve this question. This question can be solved by me. Next देखिएगा. You should not play क्रिकेट. यू शुड नो प्ले क्रिकेट. ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव एक्टिव फॉर्म है. अब पैसिव क्या करूंगा, ये यहाँ पे आएगा. वाई? बिकॉज सब्जेक्ट हमारा ये था, ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट. अब मैं पैसिव फॉर्म में क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दूंगा. क्रिकेट हैज बिकम अ सब्जेक्ट, क्रिकेट शुड. मॉडल फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब विल बी सेम. उसको क्या करेंगे, नेगेटिव है, नॉट बी कर देंगे हम. क्या लगा देंगे इसके पीछे? बी. क्रिकेट शुड नॉट बी. और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग, प्लेज, नो. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल.
cricket should not be played by, and by क्यों लगाया मैंने? Because rule tells, rule says played by you. एक और देखिएगा, they used to enjoy, they used to enjoy football. They used to enjoy football. इसमें बताइएगा फ्रेंड्स, आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूं, इनमें सब्जेक्ट, वेरी सब्जेक्ट, दे और फुटबॉल. फुटबॉल इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हियर. Because who is enjoying football? Who? Football is enjoying or they? Who used to enjoy? You will say they used to enjoy. अब उसको मैं पैसिव फॉर्म में करूंगा. ये देखिए, ये पैसिव फॉर्म. अब पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स? एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है. अब ये जो ऑब्जेक्ट थे सब्जेक्ट बना दिया मैंने. फुटबॉल यूज टू बी. क्या करेंगे आप? वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ देंगे एज इट इज सेम, उसको फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा. फुटबॉल यूज टू बी enjoyed by them. Isn't it? तो दिस इज कॉल्ड, एक एग्जाम्पल और हम ले लें, मस्ट कर लीजिएगा. आई मस्ट पास माई एग्जाम. आई मस्ट पास माई एग्जाम. सब्जेक्ट इज आई, ऑब्जेक्ट इज एग्जाम, माई एग्जाम. माई एग्जाम यहां लेके आऊंगा मैं. माई एग्जाम मस्ट बी passed by me. Isn't it? तो दिस इज पैसिव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल्स की जो पैसिव फॉर्म होती है उसको हम ऐसे बनाते हैं. इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? टेंसेस की पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं. अब मैंने आपको क्या बताया? व्हाट आई हैव टॉट यू राइट नाउ. आई हैव टॉट यू राइट नाउ दैट हाउ टू चेंज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एनी मॉडल इनटू पैसिव फॉर्म. और उसके रूल्स ये होते हैं. आपको एज इट इज़ वो मॉडल फॉर्म, ऑक्सिलरी फॉर्म आपने लगा देनी है और उसके पीछे बी लगा देना है और बाकी रूल्स विल रिमेन सेम. अंडरस्टूड? यस. नाउ फ्रेंड्स, now the last but not the least, very important, especially for board students and for the students who are preparing for competitive exams, imperative sentences. What do we call imperative sentences? What is called imperative sentences? क्या होता है imperative sentences? देखिए, imperative sentence. क्या होता है imperative sentence? Imperative sentences are such sentences in which we make request, we give order, we give suggestions, we give command. These types of sentences are called imperative sentences. Like see, come here. And in these types of sentences our verb is intransitive. Intransitive means which is not which doesn't have any direct object. देखिए, come here, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस. प्लीज come here. Isn't it? Come here, please come here. Next, where
हेलमेट, वेयर हेलमेट। और देखिएगा, डू नॉट स्पिट हेयर, इजंट इट। देखिएगा, नेक्स्ट इज डू नॉट make noise, do not make noise. See, come here, please come here, wear helmet, do not spit, do not make noise, and many sentences are like this. In these types of imperative sentences, friends, what happens, we assume that our subject is you, because first person is talking to second person, but it is hidden, it is assumed, it is assumed. Now see what happens, आप इस सेंटेंस को पढ़िएगा, इसमें सेंस देखिएगा। ये जो है प्लीज कम हियर, इसमें आपको लग रहा है कि समवन इज ऑर्डरिंग यू, इज समवन इज कमांडिंग यू? नो, यू विल से समवन इज रिक्वेस्टिंग। तो ये किस फॉर्म में है सेंटेंस हमारा? रिक्वेस्ट फॉर्म में फ्रेंड्स। वेयर हेलमेट, इसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर इसे प्लीज लगाया तो हम कह सकते थे यस रिक्वेस्ट है। यहां पे कोई हमें धमका रहा है क्या? समवन इज थ्रेटनिंग अस? नो। समवन इज ऑर्डरिंग अस? नो। आप सेंस पकड़िए क्या है, वो कह रहा है वेयर हेलमेट, इट मीन्स यहां पर कोई ना कोई सजेशन है या एडवाइस है। इस सेंटेंस में यही शो हो रहा है ना, वेयर हेलमेट। मैं आपको बोलूं वर्क हार्ड फॉर योर करियर। अब इसमें कोई ऑर्डर है क्या? नो। यू विल से इन दिस सेंटेंस देर इज अ सजेशन, देर इज एन एडवाइस। डू नॉट स्पिट हेयर, डू नॉट स्पिट हेयर। अगेन इसमें देखिए क्या है, डू नॉट स्पिट हेयर, कोई आपको क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है। ऑर्डर नहीं कर रहा, हो सकता है ऑर्डर भी कर रहा हो, लेकिन उसकी जो आपकी जो लैंग्वेज होगी उसका सेंस आप पकड़ेंगे कि उसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा होगा। जैसे मैम बोलती है हे कम हियर, इट मीन्स समबडी इज ऑर्डरिंग अस, समबडी इज ऑर्डरिंग अस। डू नॉट मेक नॉइज, अब इसमें आप बोल सकते हैं, इसमें डू नॉट मेक नॉइज, मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर आपकी मैम ऐसा बोलती है डू नॉट मेक नॉइज, ऑल्दो आप नहीं मानते लेकिन फिर भी बोलती है, एंड शी कीप्स टेलिंग यू डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट मेक नॉइज, बट यू नेवर कीप मम। डू नॉट मेक नॉइज। अब इसमें क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं कि ऑर्डर का सेंस आ रहा है, ऑर्डर का सेंस आ रहा है। वर्क हार्ड फॉर योर करियर, somebody is giving advice. See friends, come here. अब इसमें क्या है, कोई ना कोई कमांड कर रहा है हमें, गो देयर, सिट देयर, डोंट सिट देयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ सच सेंटेंसेस विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाउ, सी एज आई टोल्ड यू, वी अज्यूम दैट आवर सब्जेक्ट इज यू, आवर सब्जेक्ट इज यू। तो आप क्या बनेंगे, आपने उसको सेंस को पकड़ना है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में द वर्ड्स विच हैव बीन स्पोकन, विच हैव बीन रिटन, उसका सेंस क्या जा रहा है। अगर कमांड आप यूं कर देंगे, यू आर कमांडेड टू लगा देंगे आप, कम है। कमांड क्यों किया मैंने, देखिए सब्जेक्ट लिखा मैंने, उसको पैसे बनाया यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड मैंने लिख दिया क्योंकि कमांड का मुझे सेंस आ रहा था, उसमें ऑर्डर का सेंस भी आ सकता है। टू कम हियर, उसको क्या किया, उसके आगे मैंने टू लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट, प्लीज कम हियर, उसमें रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। सी फ्रेंड्स, why I am using requested here and why I am using commanded here, because by reading the sentence I can have easily an idea that somebody is requesting, here somebody is commanding, and
automatically we assume that subject is you. Wear helmet. Again suggestion. देखिए अब suggestion और advice, students very important. I know that we do not know what is the difference between a suggestion and advice. There are different definitions of suggestion and advice, but जो मैंने experience किया, as per my experience मैं बोलता हूँ कि suggestion और advice में difference क्या होता है. Suggestion ऐसी चीज़ है, मान लीजिए मैं आपको कुछ चीज़ suggest करता हूँ कि अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड नॉट सिट लाइक दिस, अब ये क्या एक सजेशन है. अगर मैं आपको बोलता हूँ यू शुड नॉट वॉच मूवीज, तो एक सिंपल सजेशन है. सजेशन क्या होता है, अगर आप मेरे सजेशन को नहीं मानेंगे, इफ यू डू नॉट फॉलो वट एवर इज बींग स्पोकन बाई मी, वट एवर इज बींग सजेस्टेड बाई मी, देयर विल बी नथिंग अनडिजायरेबल. सजेशन होता है किसी ने सजेस्ट किया, लेकिन अगर आप उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कुछ अनडिजायरेबल नहीं होने वाला. लेकिन अगर इफ समबडी इज गिविंग एडवाइस, ध्यान दीजिएगा दोस्त, सजेशन में क्या होता है, अगर आप सजेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई अनडिजायरेबल चीज़ नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन एक सजेशन है. लेकिन अगर आप एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे तो समथिंग अनडिजायरेबल में टेक प्लेस. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, वेयर हेलमेट, तो वेयर हेलमेट में सजेशन सही रहेगा या एडवाइस? क्यों? अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो समथिंग अनडिजायरेबल में हैपन, तो आप हो जाएगा यू आर एडवाइज टू वेयर हेलमेट. सजेशन भी आ सकता है, बट एडवाइस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एडवाइस अगर नहीं मानते हैं तो अनडिजायरेबल. डॉक्टर कहता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम. सी, इज दिस a suggestion or is this an advice? It's an advice. If you do not take medicine, you know what can happen. तो आप बोलेंगे you are advised to, हम to लगा देते हैं, ऐसा करेंगे you are advised to लगा के सेम, the rest will remain same. अगर मैं आपको एक और सेंटेंस बोलता हूं और उस सेंटेंस में बोलता हूं कि you should not eat जंक फूड. अब ये किसी के लिए एडवाइस हो सकती है, किसी के लिए सजेशन हो सकता है. एडवाइस उसके लिए हो सकती है मान लीजिए इसको डॉक्टर ने मना किया, अगर वो खाएगा तो उसके हेल्थ को प्रॉब्लम्स आएंगी. लेकिन एक सिंपल सजेशन भी हो सकता है, बोलेंगे यू आर सजेस्टेड. तो so in this sentence you can say it's an advice, because if we do not follow the instructions something undesirable may take place. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, advice. Do not make noise in this sentence friends. Do not make noise. Somebody is ordering us, your ma'am, your teacher and anyone. Your mother can be there. Do not make noise. So क्या हो जाएगा, you are ordered. अब देखिए कुछ मैंने आपको बताया उसके आगे टू लगाएंगे, अब हम टू नहीं करेंगे, अब इसको हम करेंगे नॉट टू. नॉट टू मेक नॉइस, बिकॉज सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म. नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे यू आर एडवाइज टू डू नॉट, तो इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. यू आर एडवाइज नॉट टू मेक नॉइज. यू आर एडवाइज और यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी, यू सपोज इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज. टू नहीं आएगा, टू नॉट के बाद फॉलो करेगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. सो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज. अब लास्ट देखिए, वर्क हार्ड फॉर योर करियर. यू आर सजेस्टेड या एडवाइज्ड? Advised. Why? Because if you do not follow, something undesirable can take place. आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, आपका करियर नहीं बन पाएगा. तो अब क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हटेगा, एडवाइस. यू आर एडवाइज टू
work hard for your career. Understood, friend? So this is an example of imperative sentences. I told you imperative sentences we make request, we give suggestion, we give advice, order, suggestion. Understood? So this is called passive form. I told you how to make passive form of tenses, how to make passive form of auxiliary verbs, how to make passive voice of imperative sentences. And one more thing I want to tell, keep criticizing but keep supporting. Thank you.